ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಜೀವಶಕ್ತಿ, ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದ. ಅಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ಪರಕೀಯರಿಂದ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದೇಶದ ಮುಗ್ಧ ದುಡಿಯುವ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಕೀಯರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿರವರು ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ.
ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದವರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು, ಮಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಕವಿದ ಗೀತಜ್ಞರ ಹಿರಿಯರನ್ನೇನು. ಇವರು ಹಿರಿಯರುಗಳೇ, ಯಾಗ ನಟ್ಟು ವಿಗಪಾಣರು. ಇದರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಧಿಸಿದವರೇನು ಕಿರಿಯರೇ. ಇಂತು ವಿದ್ಯಾ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರಶೀಲಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೆ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ನೀವು ಸಣ್ಣವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿವಭಕ್ತರೇ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಸಗಣಿಯ ಬೆನಕಂಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಅರಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಂಜನೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಗಂಜಳ ಬಿಡದು ನೋಡಣ್ಣ. ಮಣ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೆಸರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅಚ್ಚುಗ ಬಿಡದು ನೋಡಣ್ಣ. ಈ ಲೋಕದ ಮಾನವನಿಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟವನಿಕೆ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗುವನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. मैं कुछ शॉर्टकट में हिंदी में बोलना चाहता हूँ. वेद शास्त्र पुराण आगम तर्क ये सारे किसी इंसान को प्रगति होने नहीं देता है. ये लोग सबके घर में के झगड़े के कहानी बोलकर यहाँ की लोगों को गुलाम बनाकर रख लिया. सो भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने समझा था उस जमाने में हमारा भारत देश स्वतंत्र. अब बाद में का महात्मा बसवण्णा का वचन में क्या है थे, जो गणपति बोल के बनाते ना, ಸಗಣಿಯ ಬೆನಕಂಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಅರಳಿನಲ್ಲಿ पूजिಸಿದರೆ. गोबर का गणपति अगर बना के उसको ऊपर से कलर लगा के समझो, बाद में
संपिगे फूल, अच्छा खुशबूदार फूल लाकर उसका बाजू में रखकर हम पूजा करें तो भी वो जो गोबर का, जो जानवर से गोबर का जो मूर्ति बना है ना, उसका अंदर का जो बदबू, उसके गोबर का बदबू जा सकता क्या? कोई तो पूछो, इसके बारे में सोचो, जरा सोचो, दिमाग करो, दिमाग से चलो। ಸಂಪಿಗೆ ಅರಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಂಜನೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಗಂಜಳ ಬಿಡದು ನೋಡನ್ನ। ये क्या है? मनोरंजन होता है, खाली मनोरंजन, लेकिन उसका बदबू किसी हालत में नहीं जा सकता है। आप कितने भी अगरबत्ती लगाओ उसके साथ, उसका बदबू नहीं जा सकता है। आगे क्या बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ जी? ಈ ಲೋಕದ ಮಾನವರಿಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, शिवदीक्षे बोले तो इष्टलिंग, इस ब्रह्मांड का लांछन, तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा यीशु तुम्हारा अंदर है, हाँ, तुम्हारा गुरु नानक तुम्हारा अंदर है, जितने भी देश, तुम्हारा बुद्ध भी तुम्हारा अंदर है। ये जितने भी महान पुरुष जो है ना, इस देश के जो अज्ञानी लोगों को जो बताए ना रास्ता, उन सारे लोगों का विचार भगवान कहाँ है? भगवान इंसान की हाथों से बनाया हुआ मूर्ति में किसी हालत में भगवान नहीं मिल सकता है। इसीलिए महात्मा बसवಣ್ಣ जी 12वीं शताब्दी में बसवा कल्याण कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। अनुभव मंडप बोलते उसको, नॉलेज। सभी लोग मिलकर चिंतन करते थे, और वो लोग खाली पूजा पाठ करते नहीं बैठते थे। उन्होंने क्या कहा? काम, मेहनत, काय कवे कैलाश बोले, अरिवे गुरु बोले। अरबी ने गुरु नहीं, कपड़ा नहीं। ऐसा विचार इस दुनिया में, इस धरती पे अगर कोई तो दिया हुआ है तो हमारा विश्व संविधान के महात्मा बसवಣ್ಣ जी, भारत के संविधान के निर्माण में मुख्यस्थ भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मैं उनका किताब पढ़ा हूँ। इसलिए अभी हमारा भारत देश के सभी लोगों को किताब पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और इंसान में भेदभाव करने का कब तक हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा भारत देश के लोग शांति से नहीं रह सकते हैं। अगर शांति से रहना है तो विश्व संविधान के किताब पूरे 770 शरणों का वचन और 1,96,000 का जो तत्व प्रचार करे, सो उन लोगों का विचार और भारत के संविधान का जो विचार, ये दो रास्ता हम अगर पकड़ेंगे तो हमारा भारत देश में सब लोग मिलजुल कर रहने को आता है। मैं इस सवेरे सवेरे, क्योंकि इंसान पैदा होकर आने के बाद में इस धरती पे हम कितना दिन रहते हैं? हाँ, कितना दिन रहते बोलो? आज है, कल नहीं। रात और दिन के जैसा इंसान हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पैदा होकर आए और ऐसे चले गए। लेकिन महात्मा बसवಣ್ಣ का और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का अगर हम लोग विचार नहीं पढ़ेंगे तो हम अज्ञान की रास्ता पर जाकर भारत के अंदर फिर गुलामगिरी, अब पहले विदेशी लोग गुलामगिरी हमको रखकर चले गए, अब भारत में ही कुछ लोग विदेशी लोग हैं। उन लोगों की वजह से हमारा भारत देश में रोज़ रोज़ एक दूसरे के ऊपर, जात के ऊपर, नाम के, धर्म के ऊपर, भगवान के नाम पे जो झगड़ा चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा देश को भला होने वाला नहीं है। बहुत खतरा है ये खतरा कौन कर रहा है?
ये क्यों कर रहा है, ये तो हम लोगों को सबको मालूम हो रहा है, लेकिन ये आगे के दिनों में बाहर के देश वाले हमारा देश को देखकर हंसते हैं हंसते। इसीलिए भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ये जो मनोवाद विचार है ना, इससे दूर रहकर आप लोगों को दो रास्ता चुनो। एक तो स्कूल को जाओ, स्कूल का घंटी बजते स्कूल को जाकर ज्ञानी हो जाओ, और दूसरी तरफ मेहनत मजदूरी करके सब लोग मिलकर रहो। ऐसा महात्मा बसवण्णा जी क्या जो शरणों का वचन में कहे, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा कराए। अगर आज के जो जो कुचले गया, जो नीचे दबाया गए थे, उन लोगों को, जो मेहनत करने वालों को, उनको जो इन्हें गुलाम बना ले था ना, वो सारे लोगों के ऊपर मैं विनती करता हूँ, तुम लोग किताब पढ़िए और स्कूल को जाइए। सब लोग एक भगवान को मानिए, वो भगवान सबका अंदर है। इसीलिए मैं तो बार बार कहता हूँ, हर गांव में अनुभव मंडप, वहाँ पर महात्मा बसवण्णा जी का विचार, शरणों का विचार और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का विचार को पढ़िए। आप देखो, इंसान हमारा भारत देश को अच्छा भारत बना सकते हैं। इसीलिए जो भी वचनों में लिखा है वही 22 प्रतिज्ञा भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी बोला है। इस विचार को सब लोग, हम लोग समझना जरूरी है। और सब लोगों को जो सोच समझकर ऐसा गलत करते हैं, क्या नहीं समझकर गलती करते कि लोग समझ में नहीं आ रहा, इनको ये किताब सबको पढ़ाना और प्रचार करे तो जो गलत करने वाला है वो भी इंसान सुधार सकते हैं। मेरे को भरोसा है वचनों के और विश्व संविधान, भारत के संविधान के ऊपर हम भरोसा रखना चाहिए। और जब तक इस जान में जान है, तब तक हम अपना देश का जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, देश का अभिमानी, ऐसा बोलते हैं ना, अगर देशभक्त होना है तो ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही देवस्थान है, ये शरीर ही देवालय है। ये 100% में बोलते हुए आप सोचिए, ये सही है तो मानिए, अगर झूठ है तो आपकी मर्जी। मैं इतना बोलते हुए, मैं कड़कड़ी का विनंती के साथ बोलते हुए, पूरे भारत के अंदर 140 करोड़ 45 करोड़ जनसंख्या है ना, उन सारे लोगों का, हर एक इंसान का घर को उनके दिमाग में पहुंचने का अगर काम करे तो यही बहुत बड़ा भगवान का पूजा होता है। यही बहुत बड़ा देशभक्त होते हैं वो लोग, यही बड़ा देश प्रेमी होते हैं, यही बहुत बड़े राष्ट्रभक्ति के लोग होते हैं, बोल के मैं गारंटी के साथ दिल से बोलते हुए इस देश के भलाई का कुछ विचारों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करते हुए, लास्ट में पूरे मेरा भारत देश के अंदर जो इस विचारों को मानने वाले देश विदेश में कितने भी भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का विचार और विश्व संविधान के महात्मा बसवण्णा का शरणों का विचार मानने वालों को सबको मैं यहाँ से इस सवेरे का टाइम पे मैं शरण करता हूँ।